थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने अपने स्केड्यूल में से टाइम निकाला इस सेशन को अटेंड करने के लिए। एज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड बाय औरंगजेब किरमानी कि हमारा आज का जो सेशन है दैट इज बेस्ड ऑन अ केस, और केस बेस्ड डिस्कशंस वर्ल्ड वाइड भी बहुत ज़्यादा होते हैं, एंड इट एक्चुअली हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड एक्चुअली विद एन एग्जांपल के बेसिकली विद अ पेशेंट आप उसकी जर्नी को किस तरह लेके जाते हैं टुवर्ड्स मैनेजमेंट. So this is why we have a case here today. So let's start. So we would be discussing a patient named Sunan, and he is initiating treatment, diagnosing, and actually addressing the safety concerns जो कि pediatric group के अंदर बहुत ज़्यादा as HCPs आप लोग face करते हैं. Discussing about the country dynamics of Pakistan. आप लोगों को पता है कि pediatrician से पहले maybe a normal GP is the first point of contact for any child in the house. तो जैसे ही वो बच्चा जिस एज ब्रैकेट में बड़ा होता जाता है, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिस जीपी का भी होता है, हमेशा उस बच्चे को उसके पास लेके जाया जाता है और उनकी डिस्कशंस वहाँ पर होते हैं, एंड देन एक्चुअली वहाँ से रेफर होता है पेशेंट टू अ स्पेशलिस्ट. So this is a patient. His name is Sunan, and basically he has some trouble of asthma symptom which is affecting his daily life. So who is Sunan? He is a 9-year-old boy. उसके पेरेंट्स उसको क्लिनिक में लेकर आए विद सिम्टम्स ऑफ कॉफिंग एंड वीजिंग, जो कि तकरीबन 6 महीने से चल रहे हैं. ठीक है. एंड व्हेन द हिस्ट्री हैज बीन डग डीप, तो उसके अंदर पता चलता है कि अप्रोक्सीमेटली 3 times इन अ वीक इस बच्चे को खांसी और वीजिंग अगर मैं लेमैन टर्म में समझाऊं तो बेसिकली जो सीने में से सीटी की आवाज होती है, इट्स दैट. इसकी वजह से द मदर इज कंसर्न्ड, एंड बिकॉज दिस किड is a football player, he is unable to play his football match, and this is affecting his mental health as well and his physical health as well. And he has become sad कि ये अपनी इन symptoms की वजह से फुटबॉल नहीं खेल पाता, और अपने इन्हीं symptoms की वजह से he keeps on waking up at night. So these are the classic symptoms which a child or the pediatric group presents to a doctor with. So, if you're the doctor, what did you do? You took the notes of his symptoms, and you did take note that his symptoms are basically affecting his quality of life. ACT scoring की जिसमें 18 इसका score आया. C is for the child and ACT is asthma control test. PEF was 75%, and a set diagnosis for asthma was made. So if you ask the child कि भाई उस बच्चे से hypothetically पूछा गया कि what is his expectation, then obviously एक बच्चे, क्योंकि he was very much into football, his expectation was that I want to play football again and I do not want to be tired and grumpy at school. Basically this means कि he just wants to have his good quality of life back and he want to play again and be in this school again. So, do you find that a pediatric patient and the caregiver can actually perceive asthma symptoms correctly, going back to the history कि उस बच्चे को तकरीबन 6 महीने से symptoms हो रहे थे, ठीक है, जो on and off उसको weekly basis पे disturb कर रहे थे, and still it took a lot of time for the parents to register कि वो symptoms उसकी daily life को और उसके games को या उसकी physical activity को कितना disturb कर रहे हैं. So, I would like to question you all here, and मैं appreciate करूँगी Aurangzeb that you can step in and into the chat room and see what our doctors have to say. कि क्या आप लोगों की daily practice में आपको लगता है कि जो बच्चे और या उनके माँ बाप हैं, बच्चा तो obviously is the person जो कि लाया जाता है, क्या उनके माँ बाप को correct time पर ये रजिस्टर हो जाता है कि इनके बच्चे को दमे की शिकायत हो रही है या इनके डेली लाइफ अफेक्ट हो रही है? You have 3 options, yes, no or unsure. Just let me know what as a doctor आपके इसका आपका क्या आंसर है, so that we can spend a minute on it to discuss. Thank you, Dr. Shumala. So I'll really appreciate all the attendees
कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस पॉइंट के हवाले से, वो आप हमको चैट बॉक्स में बताते रहें. सो आई विल इंक्लूड योर रिस्पॉन्सेज इन दिस सेशन एज वेल. सो या डॉक्टर शमरा, तो जो रिस्पॉन्सेज हमारे सामने इस वक्त आ रहे हैं, वो मोस्टली जो रिस्पॉन्स हमारे सामने आ रहा है वो ये कि द केयर गिवर्स आर यूजुअली अनश्योर एंड दे आर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग द डॉक्टर्स टू लेट देम नो कि डिजीज की सिवियरिटी जो है वो किस हद तक जा चुकी है. कुछ हमारे पास रिस्पॉन्सेज हैं जो ये बता रहे हैं कि जिन्होंने स्ट्रेट कहा है कि इट्स अ नो, कि caregivers usually are not understanding the patient's symptoms at all. और अब मैं इसको फॉर्चुनेट समझूं या अनफॉर्चुनेट समझूं, हमारे पास यस एक भी रिस्पॉन्स नहीं आया है. तो लेट्स एस्टेब्लिश दिस फैक्ट कि जो पेशेंट के सिम्टम्स हैं वो केयर गिवर यूजुअली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते हैं, एंड इट्स कंप्लीटली द डॉक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ओपन द पिक्चर फॉर देम. बिल्कुल औरंगजेब, आई थिंक दिस is definitely an unfortunate situation कि केयर गिवर्स बीमारी को एक सही लेवल के ऊपर प्रॉब्ली रजिस्टर नहीं करते, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू अ चाइल्ड. एंड इफ आई टॉक अबाउट आस्मा, तो जितनी हमारी इंसाइट्स हमने जनरेट किए हैं या रिसर्च की है, तो इट्स अ सैड सिचुएशन जहाँ पे हमारे सामने ये चीज़ आई है दैट माइल्ड स्टेज के ऊपर तो एस्थमा डायग्नोज ही नहीं होता. So probably this is a eye opener or a call or a cry, a silent cry for help कि अगर आप जरा से भी symptoms even in an adult देखें that वो symptom जो basically आपकी life को या physical activity को disturb कर रहा है, then I think it's a time where you should immediately reach out to a healthcare professional for help. So this is basically a worldwide study जहाँ पे patients and parents के ऊपर स्टडी की गई थी who overestimate asthma control level and underestimate the severity of asthma symptom. So if you see, this is a very clear graph जहाँ पे एक well believed asthma control है and there is a belief कि भाई the asthma is completely controlled. So 32 to 49% believe that their asthma to be well or completely controlled despite experiencing severe symptom. Well controlled or completely controlled में there's a difference of symptom जहाँ पे आपको weekly कुछ symptoms आ रहे होते हैं, ठीक है. It's like a well-controlled system, and completely means that there are no symptom-free days as well. So this is a study which was conducting worldwide. Unfortunately, we don't have a study based in Pakistan जिसमें आपको उनकी level की graphs दिखा सकें. But this is a common scenario जहाँ पे एक misperception create होता है. So let's discuss what are the effects of poorly controlled asthma. Poorly controlled asthma का मतलब सिंपली यही है कि सिम्टम्स ऐसे हैं जो मरीज को या बच्चे को रात को सही से सोने नहीं देते. देयर इज नाइट टाइम कॉफिंग, क्योंकि जब लेटा हुआ होता है बच्चा तो एयर फॉर रेजिस्टेंस की वजह से म्यूकस प्लग्स बन जाते हैं. वो म्यूकस प्लग्स जो होते हैं वो एयरवे को होल्ड करते हैं, जिसकी वजह से नाइट टाइम कॉफिंग होती है. उसके अंदर एयर फ्लो रेजिस्टेंस की वजह से देयर इज नो प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है. वीजिंग होना शुरू हो जाती है, कॉफिंग होना शुरू होती है, सारे क्लासिक टाइम. सो दिस इज अ स्टडी विच स्टेट्स कि एस्थमा इनसाइट्स इन रियलिटी AirApp2 सर्वे के अकॉर्डिंगली, ठीक है, what are the classic symptoms of poorly controlled asthma? There are restriction to everyday activities, there is disrupted sleep at least once a week, and there are missed school days. Because we are talking here specifically about the pediatric group, तो हम बात कर रहे हैं कि भाई बच्चे ने कितनी बार स्कूल मिस किया. सिमिलरली अगर यहाँ हम कोई एडल्ट की बात कर रहे होते तो वी वुड हैव नोन कि इकोनॉमिक बर्डन किस तरह अफेक्ट होता है व्हेन ड्यू टू अ डिजीज लाइक एस्थमा आपके काम के दिनों में छुट्टी हो रही होती है. So what is your most difficult challenge when managing pediatric asthma? So this is again a question जो कि मैं हमारे जो HCPs हमारे साथ हैं ऑनलाइन, I would like to ask them कि आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है जब एक बच्चे को आपके पास ट्रीटमेंट के लिए लाया जाता है. इज दिस अंडरप्ले ऑफ सिम्टम सिवेरिटी, यानी कि क्या सिवेरिटी के लेवल पे आपको उसको ट्रीट करना प्रॉब्लम होता है, या उसमें पेरेंट्स के माइंड में होता है कि भाई ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हैं,
या आपको लगता है कि बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो ट्रीटमेंट को एडहेयर नहीं करेंगे, कंप्लाई नहीं करेंगे, थोड़ा सा बच्चा ठीक होगा तो वो छोड़ देंगे, या फिर देयर इज डिफिकल्टी इन यूजिंग द डिवाइस, यानी कि जो डिवाइस आप उनको देंगे अस्थमा के लिए उसकी टेक्निकलिटीज या यूजेज के ऊपर पेरेंट्स उसको अपने बच्चे के ऊपर सही से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. Let's have few seconds here, and I will see your comments in the chat box. के as a doctor, if you see that you are treating Sunan, तो आपको उसके parents के साथ क्या challenge face करना पड़ेगा? Right, so to all the participants, I would love it कि आप लोग chat box में और Q&A box में अपने responses को drop कर दीजिए. डॉक्टर शुमाला, जो response अब तक हमारे सामने आ रहे हैं वो लो ट्रीटमेंट अडेरेंस का रिस्पॉन्स हमारे सामने है. और बिल्कुल मल्टीपल रिस्पॉन्सेज हैं जिन्होंने लो ट्रीटमेंट अडेरेंस की बात की है. उसके बाद फियर ऑफ साइड इफेक्ट्स की भी बात की है. और स्पेसिफिकली ये बात यहाँ जा रही है कि जो टैबलेट्स वगैरह की जो बात आ रही है मैनेजमेंट में, उसके हवाले से उन्होंने कहा कि पेरेंट्स जो है वो फिक्रमंद रहते हैं रिगार्डिंग देयर साइड इफेक्ट्स. अगर मैं टोटलिटी पिक्चर आपको पेश करूं तो ये चारों जो इस वक्त हैं हमारे सामने ऑप्शंस, उन सब ऑप्शंस को मेंशन किया है हमारे पार्टिसिपेंट्स ने. तो हम यहाँ इस स्लाइड पे ये एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि लेट्स नॉट पिक द मोस्ट डिफिकल्ट वन. हम ये कंसिडर करते हैं कि ऑल ऑफ दीज आर इक्वली डिफिकल्ट टू मैनेज, क्योंकि मिक्स रिस्पॉन्सेज हमारे पास. सो ऑन फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड, डॉक्टर कंटिन्यू विद द सेशन. Thank you, Aurangzeb. Yes, I totally agree that if we talk about the scenario in Pakistan, तो as a doctor मुझे भी ऐसा लगता है कि ABCD वाले सारे challenges एक लेवल पे मैंने भी फेस किए हुए हैं कि पेरेंट्स को अंदाजा नहीं हो रहा होता सिम्टम्स की सिवेरिटी का, कि बच्चा वीजिंग के साथ आया, इवन इफ ही इज लैंडिंग इन एन ER, वीजिंग आपने बैक टू बैक उसकी ठीक कर दी, बच्चा ठीक होकर चला गया एंड इट्स नॉट अ बिग डील फॉर देम. फेयर ऑफ ट्रीटमेंट साइड इफेक्ट्स कि हाँ कुछ इनहेलर्स से रिलेटेड स्टिग्मास हैं हमारी सोसाइटी के अंदर जो कि पेरेंट्स के माइंड में बिल्ट इन हुए हुए हैं, एंड वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद दैट कि मे बी बिकॉज इट हैज अ स्टेरॉइड तो वो बोन्स पे इफेक्ट कर देगा, मे बी इट हैज अ स्टेरॉइड तो ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाएगी, मे बी इट्स अ स्टेरॉइड तो दे वुड दी बोन डेंसिटी वुड गो डाउन. लो ट्रीटमेंट एडहेरेंस के ऑब्वियसली इफ इट्स प्रिस्क्राइब कि भाई अगर आपके बच्चे को हम ये एक इनहेलर दे रहे हैं फॉर द सेक ऑफ ट्रीटमेंट, आपने फलाने टाइम तक इसको यूज करना है, थोड़ा सा बच्चा ठीक हुआ एंड द ट्रीटमेंट इज नॉट फॉलोड. Difficulty using the device is again a matter which needs to be discussed कि probably या तो किसी लेवल पे उनको डिवाइस का यूजेज समझाया नहीं जाता सही से, या अगर समझाया जाता भी है तो वो अप्रोप्रिएटली उसको इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से it actually ends up that the device is being difficult rather than actually going and educating themselves कि for the sake of the disease and the child कि एक डिवाइस अगर आपको दी गई है तो उसको किस तरह इस्तेमाल करना है, आप उसको सीखने के बजाय आप उसको एक डिफिकल्टी बना के अपना एक रोड ब्लॉक क्रिएट कर दें. So, as I mentioned previously, these are the different challenges जो worldwide face करते हैं लोग, the steroid phobia and the fear of side effects, low adherence. I will not spend a lot of time onto this slide because every country has a different set of challenges. और हमने जो अपने main challenges discuss किए हैं वो इन्हीं सब challenges जो worldwide चल रहे होते हैं वो यही होते हैं. So, अब एक पिक्चर हमारे पास आ गई. वी हैव अ 9-year-old बॉय जिसको कॉफ होती है, जिसको वीजिंग होती है, जिसकी डेली एक्टिविटी में मसला हो रहा है. ही इज मिसिंग स्कूल, ही इज अनएबल to basically go and play football. So, and now the parents have brought that child to you as a doctor. ठीक है, तो what treatment should he be started on? So, as a doctor, अगर आपके सामने ऐसा बच्चा है as a patient, so these are the 5 options. What do you think would be the best option that you would choose for this 9-year-old boy diagnosed with asthma? Please put in your responses in the chat box. Whatever comes to your mind, there is nothing right or wrong. This is just for the sake of discussion and being interactive. क्या आप कुछ भी start नहीं करेंगे, or because he is a pediatric patient, you would go for an LTRA?
Yeah, you would choose a SABA, or maybe you could start with a low dose ICS or SABA as needed, या फिर ICS plus LABA. What would be your initial choice for this boy? Okay, people are saying E. Yes, and I also see an option that is option B. Mm-hmm. और इसमें भी हमारे पास मिक्स्ड ऑप्शंस जो है वो आ रहे हैं. D. Uh, D. Okay. yeah, because we all know कि पाकिस्तान में जो प्रैक्टिसेस हैं Mm-hmm. उनको भी हमको सामने रखना है, और फिर द डेटा दैट वी हैव, जो मैसेज हमारे लेके आए उसको भी सामने रखना है. तो वी हैव मिक्स्ड ऑप्शंस जिसमें एलटीआरएस भी हैं, और जिसमें आईसीएस लाबास के भी लोगों ने ऑप्शंस दिए हैं. So yes, it's a mixed response, Dr. Shumala, on this particular point. So let's move on, and we can see the scientific evidence that we have, और हम देखते हैं कि वो किसको ज्यादा सपोर्ट जो है वो कर रही है. So, Global Initiative for Asthma, this is the famous GINA guideline. ठीक है, and this is a table that we have derived for the age bracket from 6 to 11 years. ठीक है, अगर आप इसमें देखें तो step 1 and 2 में they have recommended that an ICS containing treatment is recommended. There should be a preferred controller with low dose ICS and a SABA PRN, which means as needed. Alternate options would be a low dose ICS whenever SABA is taken, or LTRA plus SABA as needed. So probably the main thing following this guideline is that you need to assess the patient firstly. ठीक है, क्योंकि स्टेप तो आपको 5 दिए हुए हैं. आपने पहले पेशेंट को असेस करना है, देन यू नीड टू एडजस्ट द ट्रीटमेंट, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज टू रिव्यू द रिस्पॉन्स. यहाँ पे क्या होता है कि आपने पेशेंट को असेस कर लिया, आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, बट देर इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग कल्चर ऑफ फॉलोइंग अप, स्पेशली इन द पीडियाट्रिक ग्रुप, बिकॉज asthma is something that can come back and it can affect you at any age group. ठीक है, तो अगर एक पीडियाट्रिक एज ग्रुप का मरीज आपके पास है, ही इज देयर, तो आपको ये सबसे पहले जरूर बिल्ट इन करना है दैट दिस इज समथिंग दैट कैन कम बैक, एंड द ट्रीटमेंट नीड्स टू बी डन. इवन आफ्टर द ट्रीटमेंट द फॉलो अप नीड्स टू बी डन, ताकि वो चीज वापस ना आए और किसी सिवियर एक्सैसरबेशन के साथ या पुअर लंग फंक्शन के साथ ये दोबारा उस मरीज की लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करे. Proactive regular dosing with ICS offers better exacerbation control than intermittent ICS use. ठीक है, intermittent का मतलब तो ये होगा कि आपने ब्रेक में उसको inhale corticosteroids दे दिए in the case of mild asthma. ठीक है, but this graph says that if you are proactive in the management of asthma by giving it a regular dose with inhaled corticosteroid, तो exacerbation के chances कम हो जाते हैं. ठीक है, exacerbation basically is something which is worsening of the existing symptoms. यानी कि instead of chest tightness, wheezing or mild cough, the patient might end up into an ER अगर उसको exacerbating symptom हो. And exacerbation is basically a sign of poorly controlled asthma. So this is another study. It looks like a busy slide, but इसका जो main important point है, that when recommending intermittent therapy, we are telling our patients that asthma is not a chronic disease, only a recurrent one. So this is basically reiterating the first point that I mentioned, कि जब आपकी assessment हो, जब आपका treatment complete हो जाए, उसके बाद make sure that the patient comes back for how many months you have mentioned, कि वो आके उसका follow up जरूर कराए. And people and children who have a regular maintenance therapy and who are regular with their follow-ups land up having less exacerbations. So this is a slide which is telling about an early intervention childhood asthma study. Intermittent treatment with ICS may be an alternative approach to regular dosing for the treatment of children with mild persistent asthma.
अब इसका क्या मतलब है? द बेनिफिट्स ऑफ डेली थेरेपी इन चिल्ड्रन आउटवे एनी पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट, दैट ओके इट इज योर चॉइस कि किसी पेशेंट के अंदर आप चूज करें इंटरमिटेंट थेरेपी, ठीक है? The successful intermittent treatment in patients and parents understand if they participate in self-guided management program. अब if I talk about a country in Pakistan, यहाँ पे तो सेल्फ गाइडेड मैनेजमेंट प्रोग्राम या हैंडबुक से इसका ऑब्वियसली एक तो रिवाज नहीं है और दूसरा स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं हो सकता, प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ द लिटरेसी रेट या एजुकेशन रेट। लेकिन अगर ऐसे मरीज हैं आपके, यू कम अक्रॉस अ फैमिली, यू कम अक्रॉस पेरेंट्स जो कि इस चीज को फॉलो अप कर सकते हैं कि अपने बच्चे के अस्थमा को प्रॉपरली मॉनिटर कर सकें, ठीक है, फॉर गुड फॉलो अप, देन आई गेस यू कैन ट्राई द इंटरमिटेंट थेरेपी विद एन इनहेल corticosteroid. So in your clinical experience, what is the real world incidence of nighttime awakening in your pediatric patient? So इस क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं, एज HCPs, ठीक है, आपके पास कितने बच्चे ऐसे आते हैं जिनके माँ बाप ये कंप्लेन करते हैं कि ये रात को सोते में से उठ जाते हैं खांसी की वजह से या चेस्ट टाइटनेस की वजह से या सांस में तंगी की वजह से? प्लीज टाइप योर रिस्पॉन्सेज इन द चैट बॉक्स. वी विल स्पेयर फ्यू सेकंड्स हियर. वेल डॉक्टर शुमारा, जो रिस्पॉन्सेज हमारे सामने इस वक्त आ रहे हैं उसमें मल्टीपल प्रैक्टिशनर्स हमारे ऐसे हैं जो मोस्टली का रिस्पॉन्स दे रहे हैं और कुछ ने फ्रीक्वेंट रिस्पॉन्स भी दिया है. तो इन टोटलिटी अगर मैं इन रिस्पॉन्सेज को कलेक्ट करूं तो हाँ, हम ये स्टैब्लिश कर सकते हैं कि ये एक वो चीज़ है जो बहुत फ्रीक्वेंटली हमारे प्रैक्टिशनर्स जो है वो रियल वर्ल्ड डेटा में भी फेस कर रहे होते हैं. बिल्कुल, ऑलमोस्ट 60%. ओके, या सो आई वुड टोटली अग्री. अगर आप लोगों को मेरे इनिशियल स्लाइड पे अगर याद हो तो मैंने एक वर्ड मेंशन किया था, सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स लोगों को रजिस्टर्ड नहीं होती एज पेरेंट्स, ठीक है? और वो सिवियरिटी या क्वालिटी ऑफ लाइफ एक बच्चे की खराब हो रही है, वो उस वक्त रजिस्टर होती है जब रात वाले सिम्टम्स हाईलाइट होना शुरू हो जाते हैं बीमारी के अंदर, because that is the time when it actually hits the parent कि you know the child is not resting properly, and because he's not resting properly he's having difficulty in breathing or he's coughing badly, he's missing school. So ये वाकई में night time awakening is the only factor which basically highlights in a parent's mind कि you know something is not right with the child. चाहे उनके दिमाग में ये क्लिक नहीं करे कि बच्चे को दमा हो गया है, but इस symptom की वजह से they actually go and reach out to doctors. So this is again a bar which is comparing controlled asthma with uncontrolled asthma and how it actually affects the quality of life. आपकी physical functioning कितनी affect करती है, ठीक है, emotional behavior कितना affect करता है, social limitations, bodily pain, behavior, mental health, self-esteem. The orange bar basically shows us the control asthma figure, and the dark gray one is actually mentioning about the uncontrolled one. So I think this इसके अंदर कुछ explain, it's self explanatory कि आपकी life अगर एक control asthma के साथ रहेगी तो it would be better in terms of जिन जिन चीजों के साथ उन्होंने इसको measure किया हुआ against compared to uncontrolled asthma. CHQ is basically a child health questionnaire जिसके अंदर different questions होते हैं, और इस स्टडी के अंदर उन्होंने इन सब फिजिकल फंक्शनिंग, सोशल लिमिटेशन, इन सब के ऊपर क्वेश्चंस करके उससे इस ग्राफ को अखज़ किया हुआ है और इसके रिजल्ट्स निकाले हुए हैं. Nighttime awakenings are common in children with poorly controlled asthma. ये this is again reiterating the point जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले mention किया था कि बच्चों को ज़्यादातर प्रॉब्लम एस्थमा की वजह से जो होती है वो रात के सिम्टम्स की वजह से होती है, ठीक है? एंड ग्रेटर रिस्क ऑफ नाइट अवेकनिंग इज एसोसिएटेड विद सिवियर एस्थमा. Obviously it means that it has moved from a bracket of mild asthma to something which has become more moving towards to moderate to severe category. Proactive regular dosing within ICS
resulted in better symptom scores rather than less rescue medication versus LTRA. Okay, as HCPs in Pakistan, I think you would all agree कि हमारे यहाँ LTRAs की बहुत practice है in pediatric age group. ठीक है, but the point is कि compared with Montelukast, children treated with FP experience greater improvement. FP is fluticasone propionate. जब ये दोनों compounds को compare किया गया था Montelukast with FP, the nighttime symptom scores were better. They were free days from symptoms, and there was less lifetime awakening. So ये बार बेसिकली आपको दिखा रहा है कि ऑरेंज वाला बार कि बेसिकली फ्लूटिकासोन की वजह से नाइट टाइम सिम्टम्स पे कितनी इंप्रूवमेंट आई थी. So what are the factors that contribute to an increased risk of exacerbation? अब हमारे यहाँ, like if you talk about the culture dynamics of Pakistan, what factors contribute to an increased risk in exacerbation? I'm sure इसके अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग कंट्री डायनामिक के हिसाब से मोर ऐड ऑन कर सकते हैं, बट इन जनरल जो जीना गाइडलाइंस के अंदर बताई गई हैं, देयर इज पुअर सिम्टम कंट्रोल, देयर इज सब ऑप्टिमल ड्रग रेजिमेन. सब ऑप्टिमल ड्रग रेजिमेन का मतलब ये है कि जी आपने एक सेट टाइम के लिए मेडिसिन या इनहेलर दिया, बट द पेरेंट्स आर नॉट फॉलोइंग इट फॉर द चाइल्ड. There are some allergies and triggers associated with it. There are some financial burden that which is why the treatment could not be followed thoroughly. There is poor access to care. We don't have a national database. We don't have a proper facility जहाँ पे पेशेंट्स को रजिस्टर किया जा सके या उनके ट्रीटमेंट को फॉलोअप करा सके. विटामिन डी डेफिशिएंसी है, हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस एक्सासर्बेशन. सो दीज आर मल्टीपल फैक्टर्स जो कि which are basically there for increase of exacerbations or extremely increasing the symptoms of asthma. When initiating ICS treatment, what percentage of patients are concerned about the long-term impact? I'm sure कि ये आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने किया, बल्कि I believe that almost all of you must have experienced कि जब आप एक इनहेलर किसी बच्चे के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं या आपको बताना पड़े कि इसके अंदर एक इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, तो बहुत सारे पेरेंट्स आपसे जरूर पूछते होंगे कि जी इसके इस्तेमाल से ये बच्चे की हेल्थ पे या बच्चे की ग्रोथ पे या लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ऑफ स्टेरॉइड से क्या फर्क पड़ेगा, कितना फर्क पड़ेगा. The amount of concern they have related to the word steroid. Is it 0 to 25%? Is it the option B, C, or D? Do let me know in the chat box. Well, yeah. So we have started to get responses. So, Dr. Shumala, if we share our experiences here, option D is the most relevant one, because this is one thing that every caregiver is concerned about. The thing is that when we talk, whenever the word steroid is mentioned in front of a caregiver, their first concern is about the long-term effects. बिल्कुल. And we also have responses regarding 26 to 50% as well. That means even half of the population of caregivers are concerned about the long-term side effects. So let's establish that yes, this is one concern that is very common among the caregivers, and let's see the evidence. What evidence do we have to support it? Yes, thank you very much for your responses. So this is a slide which tells us the stigma or the phobia that still exists among the parents of asthmatic children. भाई steroid का phobia आखिर है क्या? ठीक है. This is an article which says कि पेरेंट्स के माइंड में आखिर चल क्या रहा होता है. भाई पेरेंट्स के माइंड में ये चल रहा होता है क्या बच्चे का वेट ज्यादा हो जाएगा, ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाएगी, बच्चे की हाइट छोटी रह जाएगी, क्या इसकी बोन्स वीक हो जाएंगी. हमने तो सुना है इसकी बोन्स वीक हो जाएंगी. स्टेरॉइड जो आप दे रहे हैं इसकी वजह से डिक्रीज इम्यूनिटी तो नहीं हो जाएगी, क्या स्टेरॉइड की इसको आदत हो जाएगी. ठीक है, जैसे कि आप देखें डिपेंडेंस वाली पिक्चर में
पॉकेट के अंदर इनहेलर रखा हुआ है. सो ये वो कॉमन फोबियाज हैं जो पेरेंट्स के माइंड में चल रहे होते हैं, एंड दिस इज नॉट जस्ट वर्ल्ड वाइड, दिस इज समथिंग दैट वी हैव एक्सपीरियंस्ड इन पाकिस्तान एज वेल. कि स्टेरॉइड वर्ड से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक नेगेटिव वे में जा रही होती हैं. So yes, thank you very much for your responses, and this slide actually proves, this article proves that जो आप लोगों ने figures बताए हैं वो actually में true हैं. So if I summarize about the appropriate treatment pathway, कि हमने, अगर आपको याद हो कि एक 9-year-old boy जिसको बहुत ज़्यादा symptoms हो रहे थे, ठीक है, you as a doctor आपने उसका चाइल्ड एक्ट स्कोर किया जो कि 18 आया, ठीक है. उसके बाद आपने पॉसिबल ट्रीटमेंट ऑप्शंस अपने आगे जो रखे, आपने उसके बाद ट्रीटमेंट चॉइस के अंदर आपने प्रोएक्टिव रेगुलर डोजिंग रखी विद लो ICS प्लस साबा PRN, यानी कि आपने कंट्रोलर रिलीवर दोनों को रखा कि भाई अगर कोई एक्सार्सेबेशन टाइप सिम्टम हो तो आपने साबा ले लेना है, वैसे आपने उसको लो डोज ICS पे रखा. The treatment choice that you selected did provide him benefits. ठीक है, उन्होंने उसके एयरवे इन्फ्लेमेशन को भी कम किया. उसके पेरेंट्स के कुछ सेफ्टी कंसर्न्स थे जो कि आपने दूर कर दिए कि भाई ये सिस्टमिक स्टेरॉइड नहीं है, और इतने थोड़े से स्टेरॉइड इनहेलर के थ्रू जाने से आपके बच्चे की ना ग्रोथ रुकेगी, ना हाइट रुकेगी, ना उसकी बोन्स वीक होंगी, ना उसको डिपेंडेंस होगी. आपने उसको रीअश्योर कर दिया कि लो डोज ICS आर अनलाइकली to cause any adverse effects on the growth of the child because he is a 9-year-old boy, he is a player as well. ठीक है. आपने फॉलो अप के लिए बच्चे को 3 महीने के बाद बुलाया with an action plan. Now this kid is prescribed with a low dose ICS, 2 puffs BD with a SABA as needed. अब 3 महीने के बाद वो बच्चा आपके पास दोबारा आ गया, ठीक है. After 3 months, the kid reports that his asthma symptoms are well controlled. He is back into the field. He is not feeling tired at school or anything. As a doctor, आपने check किया कि क्या उसको कोई night time symptoms हैं, और आपने check किया कि is he taking the medicine properly? Is he recording his symptoms, या week में कितनी बार हो रहे हैं, या night time waking कितनी दफा हो रही है? That has all been kept in check. कीपिंग इन माइंड कि ट्रीटमेंट के साथ साथ फॉलोअप कितना ज़रूरी होता है, ठीक है. एज अ डॉक्टर आपने इस बच्चे और इसके पेरेंट्स को दोबारा हाईलाइट किया इम्पोर्टेंस कि भाई आपने इनहेलर लेते रहना है, ठीक है. लॉन्ग टर्म इस्तेमाल इनहेलर का बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, ठीक है. बट दिस वाज अ 3 monthly अपडेट. पेशेंट ने फर्दर ईयर में कोई follow-up nahi kiya. So after this 3-month review, the patient did not turn up to you as a doctor for a year. This is a point where I would like Aurangzeb to step in and take the case study from here. All right, thank you so much, Dr. Shumaila, for handing me the session over. So the thing is कि अब तक हमने जहाँ तक डिस्कशन की है वो ये कि एक पीडियाट्रिक पेशेंट जो है वो किस तरह क्लिनिक पर प्रेजेंट हुआ और किस तरीके से फिर हमने उसका ट्रीटमेंट प्लान बनाया, कौन से इश्यूज थे जो हम लोग फेस करते रहे और करते रहते हैं, और उसके बाद अल्टीमेटली वी एंडेड अप ऑन द ऑप्शंस दैट वी हैव कि हम कौन कौन से ऑप्शंस यूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन एविडेंस टू मैनेज सच पेशेंट. अच्छा, द थिंग इज कि यूजुअली यहाँ तक केस स्टडीज खत्म हो जाती हैं और उसके बाद एक क्वेश्चन रेज होता है कि ये तो हम मैनेज कर लेते हैं, लेकिन द थिंग इज कि व्हाट इफ के सब कुछ करने के बाद भी पेशेंट की कंडीशन अगर खराब हो जाती है तो व्हाट शुड बी द एक्शन प्लान देन. तो हमने इस आज के सेशन में स्पेशली इस पोर्शन को ऐड किया था जस्ट टू हैव एन ओवरव्यू कि जब पेशेंट ठीक होने के बाद घर चला जाता है और लाइक एवरी अदर पेशेंट हियर, आप लोग इस चीज से एग्री करेंगे कि हम लोगों के पास जितने पेशेंट्स आते हैं उसमें मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट ऐसे होते हैं जो एक दफा जरा सा बेहतर या ठीक होने के बाद वापस नहीं आते, राइट. और इवन के ना सिर्फ ये एजमेटिक पेशेंट बल्कि डिफरेंट डिसिप्लिन्स दैट वी हैव, हर डिसिप्लिन में एक ये कॉमन कंसर्न है प्रैक्टिशनर्स का कि पेशेंट्स फॉलोअप पे नहीं आ रहे होते. तो यहाँ पर भी वही चीज हुई और पेशेंट जो है वो अब
11 साल का हो चुका है और उसको प्रीवियसली जो भी ट्रीटमेंट्स दिए थे वो आप लोगों के सामने हैं। और अब जब वो आया है दोबारा से जब वो प्रेजेंट हुआ है तो उसके सिम्टम्स जो है वो वर्स हो चुके हैं। वो जो डोज ले रहा था उसकी डोजेज की जो रेगुलरिटी है वो भी खराब उसकी हिस्ट्री में सामने आई और उसके सिम्टम्स जो काफी वर्स हो चुके हैं। उसको नाइट टाइम अवेकनिंग भी दोबारा स्टार्ट हो चुकी है और जो कुछ भी उसको पहले हो रहा था वो उससे वर्स कंडीशन में इस वक्त आ चुका है और अब वो हमारे क्लिनिक में प्रेजेंट हुआ है। सो द थिंग इज कि हम जब बात करते हैं इस तरीके की कि जब पेशेंट को ऑलरेडी एक ट्रीटमेंट मिल चुका हो और उसके बाद उसकी कंडीशन दोबारा से खराब हो चुकी हो, तो ऐसी कंडीशन में हमारा एक्शन प्लान क्या होता है? मतलब एक ये कंसर्न है, एक सवाल है जो यूजुअली हम लोग के जहन में उठता भी है। तो यहाँ पर व्हाट आई आस्क ऑल ऑफ यू इज कि आप लोग इसमें पार्टिसिपेट बिल्कुल करें कि अगर आपने एक ट्रीटमेंट दिया है पेशेंट को, लेट्स से हम सपोज कर लेते हैं कि आपने आईसीएस लाबा का कॉम्बिनेशन जो है वो पेशेंट को दिया है और साथ ही साथ आपने एक सल्ब्यूटामॉल का इनहेलर पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया है कि जब भी आपको सिम्टम हो तो आप ये कर लें, लेकिन रेगुलर डोजिंग प्रिस्क्राइब की गई है आईसीएस लाबा की। तो ऐसी सिचुएशन में अगर पेशेंट आता है आपके पास, तो व्हाट वुड बी योर एक्शन प्लान फॉर दिस पेशेंट? तो जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि आईसीएस अलोन वाज प्रिस्क्राइब्ड टू दिस पेशेंट ऑन अ रेगुलर बेसिस, साथ साथ साबा वाज प्रिस्क्राइब्ड टू मेंटेन द सिम्टम्स जब भी एपिसोड आती है। तो अब हमें ये ध्यान में रखना है कि पेशेंट इज ऑलरेडी ऑन अ लो डोज आईसीएस अलोन, साथ में साबा का इनहेलर फॉर रेस्क्यू पेशेंट को मिल चुका है और नाउ ही हैज अगेन प्रेजेंटेड विद अ वर्सन कंडीशन। सो ऐसी कंडीशन में व्हाट ऑप्शंस डू वी हैव? स्क्रीन पे आपके सामने आप लोग देख सकते हैं कि या तो उसी डोज को जो पहले दिया गया था उसको रीइंस्टेट कर दिया जाए या फिर आईसीएस अलोन के डोज को जो है वो डबल कर दिया जाए और या फिर आईसीएस के साथ लाबा को ऐड कर दिया जाए या फिर लो डोज के साथ एलटीआरए ऐड कर दी जाए। तो दीज ऑप्शंस वी हैव व्हेन इट कम्स टू मैनेजिंग द पेशेंट जो कि वापस आया। तो आप लोग प्लीज चैट बॉक्स में बिल्कुल बताइए कि विच ऑप्शंस डू यू कंसिडर कि हम ले सकते हैं उस पेशेंट को मैनेज करने के लिए जो एक दफा ठीक हो चुका हो, फिर गायब हो चुका हो, फिर वापस आया हो बिगड़ी हुई हालत लेके। सो वील स्पेंड अ मिनट ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड एंड देन वील मूव ऑन। Yeah, so thank you so much all of you for the responses. So the responses जो हमारे पास आ रहे हैं, डॉक्टर शमाला, मैं आपका भी इस पे आप इनपुट चाहूंगा कि जो रिस्पॉन्स आप अब तक जो रिस्पॉन्स हमारे पास आए हैं उसमें वी सी के उसमें ये बिल्कुल कहा जा रहा है कि लो डोज आईसीएस के साथ एलटीआरए भी ऐड किया जा सकता है, एक ये ऑप्शन भी है और दूसरा ऑप्शन लो डोज आईसीएस लावा का भी आ रहा है। तो दीज आर द टू ऑप्शंस जो बहुत फ्रीक्वेंटली इस वक्त हमारे सामने आए हैं। तो इफ यू हैव एनी इनपुट ऑन दिस तो प्लीज गो अहेड। I totally agree with the two options that are mentioned here in terms of the country dynamics. कि हमारे यहाँ practice है ICS with an LTRA or an LTRA alone और दूसरे practice having an ICS with the LABA. So let's see what the case proceeds with. But ये दो चीजें I do agree कि पाकिस्तान में ये दोनों combinations जो हैं ये जरूर लिखे जा रहे होते हैं. So thank you so much, Rashma, for your input. So on these slides, mein, let's see the scientific evidence that we have to support what option can be the option of choice when it comes to managing such patients. तो हमारे पास जो options हैं बिल्कुल आपने जो अपनी चॉइसेस बताई कि वी हैव 3 डिफरेंट ऑप्शंस जिसमें हम पेशेंट को मैनेज कर सकते हैं और वी हैव साइंटिफिक एविडेंस भी जिसमें तीनों को कंपेयर भी हमने किया है। एक ऑप्शन तो ये है कि जो लो डोज आईसीएस अलोन पे पेशेंट था आप उसका डोज डबल कर दें, या दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि उस लो डोज आईसीएस के साथ आप लाबा ऐड कर दें। तो आईसीएस लाबा के कॉम्बिनेशन हमारे पास जो है वो अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल वी हैव a very potent combination of fluticasone propionate and salmeterol which is by the name of Cytide as well। तो उसका लो डोज जो है आप उसको भी चूज कर सकते हैं और साथ साथ एक ऑप्शन हमारे पास ये भी है कि वही लो डोज आईसीएस अलोन जो पहले आपने प्रिस्क्राइब किया हुआ था उसके साथ एलटीआरए का ऑप्शन जो है वो आप एलटीआरए को ऐड कर दें। तो इन द कमिंग स्लाइड हम क्या करने वाले हैं
हम इन 3 डिफरेंट ऑप्शंस को कंपेयर करने वाले हैं, ये देखने के लिए कि ऐसा पेशेंट जिसकी हालत ठीक होने के बाद बिगड़ चुकी हो और उसको स्टेप अप की जरूरत हो, तो उस स्टेप अप के ऑप्शंस में विच ऑप्शंस कैन बी अ बेटर ऑप्शन कंपेयर टू द अदर वंस. सो ऑन दिस स्लाइड यू कैन वेरी क्लियरली सी कि जो जिस स्टडी की हम बात कर रहे हैं उस स्टडी ने इन 3 ऑप्शंस को कंपेयर किया. और ये स्टडी बताने का मकसद आपको सिर्फ ये है कि ये जो स्टडी थी इट वाज नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी स्टडी. ये वो स्टडी थी जिसने 3 ग्रुप्स को तीनों स्टेप अप्स देखे फॉर 3 मंथ्स. तो ये इस स्टडी को बहुत कैटेगोरिकली हम ये कहते हैं कि ईच पार्टिसिपेंट इन दिस स्टडी एक्चुअली रिसीव्ड ईच ट्रीटमेंट. तो दैट्स द रीजन कि इस स्टडी के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ऑथेंटिक और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव समझे जाते हैं. इसी स्टडी की बेस पे ये चीज साबित होती है कि कंपेयर जब हम करते हैं आईसीएस के डबल डोज को और आईसीएस प्लस एलटीआरएस को, मोंटेलुकास्ट वगैरह को हम जब कंपेयर करते हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ आईसीएस लाबा के साथ, तो ये चीज सामने आती है कि इन टर्म्स ऑफ नाइट टाइम अवेकनिंग, इन टर्म्स ऑफ एस्मा कंट्रोल, इन टर्म्स ऑफ एक्सासर्बेशन कंट्रोल, आईसीएस लाबा का जो कॉम्बिनेशन था दैट वाज साइंटिफिकली एंड बेस्ड ऑन एविडेंस इट वाज प्रूवन टू बी clinically better compared to the options of LTRAs and compared to the options of double dose of ICS. साथ ही साथ देयर आर अ लॉट मोर एविडेंसेस जिन्होंने कंपेयर किया है आईसीएस लाबा को वर्सेस आईसीएस अलोन, जिसमें चीज सामने आती है कि इवन इन द लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ सच डिजीजेस आईसीएस लाबा का जो कॉम्बिनेशन है दैट हैज to be that was proven to be more potent in terms of its clinical efficacy compared to ICS alone. साथ ही साथ there are a lot more evidences जो कंपेयर करती हैं ICS लाबा को along with LTRAs. और जब इनके कंपैरिजन की हम बात करते हैं तो we all know कि LTRAs के हवाले से काफी जो है वो ट्रस्ट भी देखा जाता है. लेकिन द थिंग इज कि रिसेंट टाइम्स में इन 2020 FDA has actually released a black box warning against LTRAs based on the long-term systemic side effects. तो इस चीज को सामने रखते हुए आजकल की तारीख में दुनिया भर में ये बात बहुत क्लियरली मानी जा रही है कि when it comes to comparison of ICS LABA along with LTRAs, तो LTRAs को ड्यू टू देयर FDA ब्लैक बॉक्स वार्निंग अब फर्स्ट लाइन की जगह काफी नीचे ऑप्शंस में रखा जा रहा है और इनकरेज ये किया जा रहा है कि a practitioner should use other options first before coming to LTRAs only because of the safety profile that drug has exhibited. तो जब बात हमने की सेफ्टी की तो the thing is कि we have safety data as well जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ. but before that मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि आर योर पेशेंट्स कंसर्न रिगार्डिंग लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन ऑफ आईसीएस कंटेनिंग ट्रीटमेंट्स. ये बात हम प्रीवियसली भी डिस्कस कर चुके हैं तो हम इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे. आप लोगों के रिस्पॉन्सेज हमारे पास मौजूद हैं इसी हवाले से कि जब लॉन्ग टर्म की बात आती है तो सेफ्टी और साइड इफेक्ट्स को लेके एक कंसर्न है पेशेंट के केयर गिवर्स का. तो उस कंसर्न को हमने ये तो देखा है कि वो कंसर्न स्टेरॉइड्स के हवाले से बहुत स्ट्रांग है और LTRAs के हवाले से इतना स्ट्रांग नहीं है. लेकिन इट शुड बी द अदर वे अराउंड. किस हवाले से कि हम जो बात करते हैं सेफ्टी की तो वो ट्रीटमेंट जो आईसीएस कंटेनिंग ट्रीटमेंट है जो कि इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड का ट्रीटमेंट है उसका हमारे पास साइंटिफिक डेटा मौजूद है, साइंटिफिक ट्रायल्स मौजूद हैं एडल्ट्स के भी पीड्स के भी जो ये चीज साबित करते हैं कि लॉन्ग टर्म में सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स या कोई भी डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ पेशेंट्स हेल्थ ऐसा कोई भी इवेंट इन ड्रग्स के साथ एसोसिएटेड नहीं देखा गया था इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ और लाबास के कॉम्बिनेशन के साथ. दैट्स द रीजन कि थ्रू आउट द वर्ल्ड गाइडलाइंस जो है वो इन मॉलिक्यूल्स को रेकमेंड कर रही होती हैं एज फर्स्ट लाइन एजेंट्स व्हेन इट कम्स टू मैनेजमेंट ऑफ asthma. On the other hand, हम जब बात करते हैं LTRAs की तो FDA ने ब्लैक बॉक्स वार्निंग इशू करने का मकसद ही यही था कि लॉन्ग टर्म में LTRAs से साइकोलॉजिकल साइड इफेक्ट्स जो है वो एसोसिएटेड थे और दैट डॉक्यूमेंट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट. आप लोग FDA की वेबसाइट पे बहुत इजीली जाके जो है वो डॉक्यूमेंट बिल्कुल देख भी सकते हैं और उसको पढ़ भी सकते हैं. तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आई बिलीव एंड व्हाट वी बिलीव कि कंसर्न जो है वो LTRAs के हवाले से ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स.
तो लाइक आई मेंशन अर्लियर कि हमारे पास जो ट्रायल्स हैं वो एडल्ट्स के साथ साथ पीड्स के भी ट्रायल्स हैं जिसमें ये चीज जो है वो स्टैब्लिश हुई दैट इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन पीडियाट्रिक पेशेंट्स, और ये वो ट्रीटमेंट है जो लॉन्ग टर्म में सिस्टेमिक साइड इफेक्ट्स की तरफ पेशेंट को लेके भी नहीं जाता. So, before we sum up our session, last but one of the most important aspects that we have कि जब हमने इनिशियली केस स्टार्ट किया था तो सब कुछ ठीक चल रहा था, पेशेंट को दवा भी ठीक मिल गई थी, पेशेंट की डिवाइस पे ट्रेनिंग भी हो गई थी, लेकिन फिर पेशेंट गायब हो गए, लाइक मैनी अदर पेशेंट्स दैट वी हैव इन आवर प्रैक्टिसेस. तो ये जो पेशेंट का फॉलो अप ना करना है, हम इसके हवाले से क्या कर सकते हैं? तो वेरी ब्रीफ कमेंट ऑन दैट कि दुनिया भर में जो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप है उस पे बहुत जो है वो काम किया जाता है, जिसमें एनकरेजमेंट की जाती है, जिसमें एनकरेजमेंट प्रोग्राम्स किए जाते हैं और केयर गिवर्स को मोस्टली एजुकेट किया जाता है सो दैट इट हैज अ ट्रिकल डाउन इफेक्ट ऑफ द अवेयरनेस ऑन द किड एज वेल. साथ ही साथ इंफॉर्मेशन और ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं नॉट टू द किड्स स्पेसिफिकली बट देयर पेरेंट्स, और अलोंग विद दैट अडेरेंस को इनकरेज करने के लिए ये एक्सप्लोर करना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज द रीजन बिहाइंड पेशेंट्स नॉन अडेरेंस. तो वो रीजन आइडेंटिफाई हो जाता है तो सॉल्यूशन को जो है वो एस्टैब्लिश करना इज फार मोर इजियर. सो इन टोटलिटी अगर हम आज के सेशन को जो है वो सम अप करें तो वी एक्चुअली डिस्कस्ड कि एक पेशेंट जो कि 9 years old था दैट प्रेजेंटेड इन आवर क्लिनिक्स विद एज्मा सिम्टम्स, और एज्मा सिम्टम्स को प्रेजेंट करने के बाद हमने ये देखा कि उसको किस तरह मैनेज करेंगे और क्या क्या इश्यूज हमको आ सकते हैं. लेकिन उसके बाद हमने एक सेशन ऐड किया जो कि हमारी मार्केट से बहुत रेलिवेंट था, और वो रेलिवेंस क्या थी? वो ये थी कि पेशेंट ठीक होने के बाद फॉलोअप पे नहीं आया. ये एक वो पॉइंट है जो पाकिस्तान में बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो हमने वो ऐड किया. जब वो नहीं आया तो उसकी कंडीशन वर्स हुई, और जब कंडीशन वर्स हुई तो उस वर्स कंडीशन में किस तरीके से हम स्टेप अप करेंगे ट्रीटमेंट को, हमने वो देखा. और फिर स्टेप अप के ऑप्शंस को आपस में हमने कंपेयर भी किया कि किस तरीके से ICS लाबा जो है दैट इज एक्चुअली proven scientifically established to be clinically more efficacious option compared to ICS के double dose, या फिर adding a leukotriene receptor antagonist, for example montelukast and other molecules. तो एक वो पॉइंट जो मैं शेयर करना चाहूंगा आप लोगों से कि जब जो आप लोगों का कंसर्न भी होगा, आप लोगों के जहन में भी ये बात आ रही होगी कि जब ये पेशेंट की तबीयत खराब होने के बाद ये दोबारा से क्लिनिक में आए थे तो ये बहुत वर्स कंडीशन में थे. इनका जो एट स्कोर आया था वो ओनली 4 आया था, जबकि एट स्कोर 19 से जब कम होता है तो वो कंसिडर किया जाता है कि आपका एज्मा का कंट्रोल खराबी की तरफ जा रहा है. तो अब आप इमेजिन कर लें कि ये 4 के एक्ट का स्कोर लेकर आए थे, और तो कंडीशन कितनी ज्यादा खराब होगी. तो ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान में भी एक प्रैक्टिस की जाती है और इस पेशेंट के साथ भी वही प्रैक्टिस की गई थी, और वो क्या था कि एक वीक के लिए, बहुत थोड़े टाइम के लिए ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पे पेशेंट को रखा जाता है जस्ट टू कंट्रोल द इन्फ्लेमेशन. और जब एक हफ्ते के बाद ओरल स्टेरॉइड्स पेशेंट को दी जाती हैं, उसके बाद ओरल स्टेरॉइड्स आहिस्ता आहिस्ता करके विड्रॉ होते हैं और फिर पेशेंट लॉन्ग टर्म पे इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पे होता है. तो इस पॉइंट को हम दोबारा एम्फेसिस कर रहे हैं कि जितने भी लॉन्ग टर्म की हमने बात की है वो ओरल स्टेरॉइड से रिगार्डिंग नहीं थी, वो इनहेल स्टेरॉइड्स के रिगार्डिंग है. और इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है वो प्रूवन है टू एक्सर्ट मिनिमल एंड नेग्लिजिबल साइड इफेक्ट्स इन द लॉन्ग रन, जो कि हमने ट्रायल्स की बेस पे देखा भी. सो ऑन दिस पॉइंट वी एक्चुअली सम अप आवर सेशन फॉर टुडे. द फोरम इज नाउ ओपन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स. आप लोग अपने क्वेश्चंस जो है वो चैट बॉक्स में और Q&A बॉक्स में जो है वो ड्रॉप कर सकते हैं. So we will make sure to include each and every comment and question that you have in our session. So thank you so much all of you for your questions. So we're moving on to our Q&A session. So the first question is, I believe कि I'll direct this question to Dr. Shumaila. Dr. Shumaila, the question is कि जो patient जिसकी हम आज बात कर रहे थे, क्या वो पेशेंट बिल्कुल न्यू पेशेंट था जब वो जहां से हमने स्टोरी शुरू की है, या फिर दिस वाज अ पेशेंट जो कि एक रेगुलर थेरेपी पर थे और फिर उसके बाद उनकी जो कंडीशन है वो वर्सन हो गई? प्लीज.
Thank you to the HCP who has actually typed this question for us. Aurangzeb, like जो मेरा patient था, he was a 9-year-old boy, and yes, he was a naive patient. He was a new patient from the pediatric group, and there was no previous history of asthma as such. तो अगर उस वक्त की भी एज को आप देखें तो उस वक्त उसको जो सिम्टम्स हो रहे थे वो प्रॉब्ली माइल्ड कैटेगरी वाले ही सिम्टम्स थे, दैट उसकी कॉफिंग थी, उसको वीजिंग थी, थोड़ी बहुत नाइट टाइम अवेकनिंग थी, और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो थी वो डिस्टर्ब हो रही थी. So this is actually how the whole case study has moved on कि आपके पास जब एक बच्चा फर्स्ट टाइम आता है अपने केयर गिवर्स के साथ, उन केयर गिवर्स की एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है कि दिस इज समथिंग दैट विल रिवर्ट बैक एनी टाइम ऑफ द लाइफ at any age bracket if it's not taken care properly in the first place. So yeah, my patient was a new patient. All right, thank you so much, Dr. Shumaila. So the next question is that which device is actually suitable, or I'm clubbing two questions just to save time. एक question LTRS के हवाले से भी आया हुआ है, तो I'll take this one. And I'm going to comment collectively on this particular question कि एक डिवाइस कौन सी पेशेंट को दी जाए, और LTRS के हवाले से जो कमेंट है हमारा वो हम उस पर और एम्फेसिस भी कर देते हैं. सो थिंग इज कि व्हेन इट कम्स टू द चॉइस ऑफ डिवाइस, तो वी हैव टू डिफरेंट क्लासिफिकेशंस जिसकी बेस पर हम जो है वो डिसीजन लेते हैं. लेकिन अल्टीमेटली व्हाट आई वांट टू स्टेट दैट कि डिसीजन इज अल्टीमेटली योर्स. ये मैं तमाम प्रैक्टिशनर्स से जो है वो गुजारिश भी कर रहा हूँ और उनसे एक रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि जो फैसला है अल्टीमेटली वो आपका है कि कौन सी डिवाइस किस पेशेंट के लिए बेहतर रहेगी. लेकिन एज मैन्युफैक्चरर्स हमारी कुछ रिकमेंडेशंस हैं, और वो ये कि जब बात आती है पीडियाट्रिक पेशेंट्स की, तो हम दुनिया भर में जो पफ एमडीआईज जिनको हम कहते हैं वो, और डीपीआई जो हमारे पास डिस्कस है, तो इवोहेलर एंड डिस्कस के हवाले से अगर हम बात करें तो थ्रू आउट द वर्ल्ड वो सारे पेशेंट्स जो इनहेल अच्छे से कर सकते हैं, हु कैन ऑफर यू अ वेरी हेल्दी इनहेलेशन, उनके लिए डिस्कस जो है वो दैट इज द चॉइस ऑफ डिवाइस ऑफ चॉइस. लेकिन वो पेशेंट्स जो फोर्सफुल और कॉम्प्रिहेंसिव इनहेलेशन नहीं कर सकते हैं, उनके लिए इवोहेलर अलोंग विद स्पेसर डिवाइस जो है वो ऑप्शन होता है टू बी प्रिस्क्राइब. तो अब ये चीज को सामने रखते हुए हम जब बच्चों पे अप्लाई करते हैं तो ये चीज देखी गई है कि जो 4 से 8 साल के बच्चे हैं जो बहुत छोटी उम्र के होते हैं, उनमें इतनी समझ नहीं देखी गई कि वो एक अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव इनहेलेशन दे सकें. हाउएवर वो दे सकते होंगे लेकिन वो दे नहीं पाते हैं. तो ऐसी सूरत हाल में 4 से 8 साल के बच्चों को हम ये कहते हैं कि आप इवोहेलर को स्पेसर के साथ अगर यूज करवाएंगे तो दैट्स गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर देम. फिर 8 साल से अबव की जब बच्चों की बात आती है तो उनमें देखा गया है कि वो डिस्कस को अच्छे तरीके से यूज कर लेते हैं. लेकिन फिर वही बात आती है कि आप ज्यादा बेहतर समझते हैं अपने पेशेंट को. आपको लगता है कि चाहे पेशेंट किसी भी एज का हो, आपको लगता है कि पेशेंट एमडीआई प्लस स्पेसर पे बेहतर रहेगा तो यू कैन गो विद दैट एज वेल. आपको लगता है पेशेंट डिस्कस पे बेहतर रहेगा तो यू कैन गो विद दैट डिवाइस एज वेल. दोनों के रिस्पॉन्सेज जो हैं दोज आर हाईली डिपेंडेंट ऑन द वे ऑफ यूजेज दैट द पेशेंट हैज टू ऑफर. तो ये हमारा रिस्पॉन्स है इन टर्म्स ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ डिवाइसेस. हाउएवर हम जब बात करते हैं एलटीआरए की तो हमने ये बात भी डिस्कस की कि वी कंपेयर्ड एलटीआरए विद आईसीएस, और उस कंपैरिजन में वी एस्टैब्लिश्ड के लॉन्ग टर्म में इन टर्म्स ऑफ नाइट टाइम अवेकनिंग, इन टर्म्स ऑफ एक्सैसरबेशंस, आईसीएस लाबा का कॉम्बिनेशन जो था दैट वाज एक्चुअली प्रूवन टू बी साइंटिफिकली मोर पोटेंट compared to the option of LTRAs. तो हाँ, LTRAs की प्रिस्क्रिप्शन और उनका जो भी रिस्पॉन्स हमको मिलता है वो अपनी जगह. वो स्टडी यही बात बता रही थी कि जो भी रिस्पॉन्सेज आप LTRAs से गेन करते हैं उससे बेहतर रिस्पॉन्सेज आप आईसीएस लाबा के इनहेलर से गेन कर सकते हैं. सो बिल्कुल. That's great, Aurangzeb. I think you've explained in a very good way. And let's see if you have more questions. By the way, अगर आप लोगों के कोई ऐसे questions है जो बाद में भी आपके mind में आते हैं, you can always reach out to a team and they can direct it to us. It's not like कि इस session के बाद.
Right. Thank you so much, Dr. Shumala, for the input. Or the last question that we have for today is that ke जीना below 5 years लाबा को recommend नहीं करता. Right. So on this point, what I would like to discuss is that लाबा alone की अगर हम बात करते हैं, for example, salmeterol alone या formoterol alone, तो yes, लाबा alone की जहां तक बात है तो वो पीडियाट्रिक में डॉक्टर साहब ने जो बात पिन पॉइंट की वो बिल्कुल वजह है. द पॉइंट हियर इज जो हमने ट्रायल्स शेयर किए थे, सेफ्टी ट्रायल्स जो हमने शेयर किए थे, जिसमें वेस्ट्री का हमने एक ट्रायल शेयर किया, तो द पॉइंट इज कि लाबा अलोन की रिकमेंडेशन जो है वो पीड्स में नहीं, लेकिन द थिंग इज कि व्हेनेवर लाबा इज बीइंग यूज्ड इन द कॉम्बिनेशन विद आईसीएस, तो सल्मीट्रॉल का जो हमारा मॉलिक्यूल है, सल्मीट्रॉल का मॉलिक्यूल अलोंग विद फ्लूटिकाजोन, ये इन कॉम्बिनेशन ये प्रूफ उसने किया कि 4 years एंड अबव के जो बच्चे हैं उनमें ये मॉलिक्यूल बिल्कुल दिया जा सकता है, उसमें इस मॉलिक्यूल की रिस्पॉन्सेज भी हैं. और इट वाज एन इंटरनेशनल ट्रायल बाय द नेम ऑफ वेस्ट्री. वेस्ट्री एक इंटरनेशनल टीम है साइंटिस्ट की जिन्होंने ये ट्रायल जो है वो स्पेसिफिकली कंडक्ट किया था यूरोपियन कंट्रीज में, और उससे चीज स्टैब्लिश की थी कि सल्मीट्रॉल विद फ्लूटिकाजोन वो 4 years एंड अबव के पेशेंट्स को बिल्कुल इजीली प्रिस्क्राइब किया जा सकता है. ये डेटा शीट में भी ये इंफॉर्मेशन इंक्लूड की गई बेस्ड ऑन हार्ड एंड कॉन्क्रीट एविडेंस. तो यहाँ पर डॉक्टर साहब हमने जितनी भी आज बात की है, जितनी भी डिस्कशन की है, हमने कहीं भी लाबा अलोन को मेंशन करने का या लाबा अलोन को प्रिस्क्राइब करने के बजाय हम कॉम्बिनेशन की बात करते रहे हैं. और कॉम्बिनेशन जो है वो फ्लूटिकाजोन प्रोपेनेट और सल्मीट्रॉल के कॉम्बिनेशन में साइटेट के नाम से आपको आईसीएस लाबा एक कॉम्बिनेशन की फॉर्म में अवेलेबल है. और इसी के अगेंस्ट वो ट्रायल्स हैं जो बताते हैं कि 4 years एंड अबव के बच्चों को ये चीज बहुत सेफली दी जा सकती है, और लॉन्ग टर्म इसके एडवर्स इवेंट्स और साइड इफेक्ट्स भी जो हैं वो ओरल मेडिकेशन के मुकाबले में बहुत कम देखे गए थे. तो आई होप दिस रिस्पॉन्स टू द क्वेरी. Okay, thank you very much. Timely wrapped up, Aurangzeb. Thank you. And okay, so this brings us to the end of the session. Thank you once again, everybody, for participating on